જે કાંઈ 1975 થી આ જુલુસની સ્થાપના મરહૂમ જમાલ અલી હાજી ગુલામ હુસૈનભાઈ રાજાણીએ કરેલી હતી અને આ જુલુસની અંદર જે સાથ અને સહકાર નામી અનામી અને જમાલ અલી હાજી ગુલામ હુસૈનભાઈના એક મિત્ર એવા કે રહેમાન દાદા, જેને આપણે શેર દાદા તરીકે ઓળખતા હતા, આ જુલુસની અંદર એને કામયાબ બનાવવા માટે ઘણો સાથ અને સહકાર આપેલો છે. તો દરેકને આજે આ સમયે આપણે યાદ કરી અને મરહૂમ જમાલ અલી હાજી ગુલામ હુસૈનભાઈ રાજાણીને એક સૂરે ફાતે આપણી બક્ષી આપવા નમ્ર ગુજારિશ છે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા મૌવાના જ કહેવાય. આમ તો એને આપણે બહારના નથી કહી શકતા. એવા આપણા મૌલાના જનાબ કલબી રૂશેદ સાહેબ, કે એમની બાબતમાં અમારે એક નાની એવી વાત કરવી છે. મને જમાત તરફથી એક હુકમ છે કે જ્યારે આપણે મસ્જિદ વલી અસરનું કામ શરૂ હતું 1998ની અંદર, ત્યારે હાલાત એવા હતા કે મસ્જિદની અંદર એક ઈંટની ગાડી પણ નહોતી. આવા કપરા સમયમાં જ્યારે કલબી રૂશેદ સાહેબને ખબર પડી કે મસ્જિદ વલી અસરનું કામ અત્યારના આ રીતે ચાલે છે, તો એમણે તાત્કાલિક જમાતનો સંપર્ક કર્યો અને લંડન અલ્હાદ અનવર અલી જે ધનજી એમની સાથે મુલાકાત કરાવી. એમનાથી કોન્ટેક્ટ કરીને કીધું કે તમે મૌલાના એ કામ શરૂ કરાવો, જે કોઈ આપે પૈસા તો તમે લઈ લેજો અને ન આપે તો કોઈ વાંધો નથી, આ કામની જવાબદારી મારી છે. આપણે આ મૌલાનાનો આભાર તો નથી માનવાનો, કારણ કે એ તો આપણા જ છે. અને આપણે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પાસે દુઆ કરી કે અલ્લાહ એમને તુલ્ય ઉમર અતા ફરમાવે અને આવા નવા નેક કાર્યોમાં આપણને સાથ અને સહકાર આપતા રહે. મોહમ્મદ રજાભાઈ જે બોલ્યા છે, હું મૌલાના સાહેબનો મદ્રસા પાર્ટી જમાત આપણી મહુવાની સમસ્ત શિયા ઇસ્લામી જમાત વતી પણ હું એમને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એ સમય બહુ કઠિન સમય હતો, કે જે સમયની અંદર પૈસા નહોતા અને એ સમયની અંદર અલ્હાજ અનવરઅલીભાઈ જાદી ધનજી અને સિરાજભાઈ ધનજી એમની મુલાકાત તો કરાવી, પહેલા એમને ફળ આપ્યું અને ફળની સાથે એમને ઝાડ પણ અમને સોંપી દીધું કે જેવી રીતે કે અનવર અલી જાદવજીભાઈ ધનજીને કે તમે આ જમાતના કોન્ટેક્ટમાં સાથે થઈ જાઓ. મૌલાના સાહેબ, હું જિંદગીમાં નહીં ભૂલું, હું તમારો આભાર વ્યક્ત કરું. ખરેખર મારા દિલથી આ મસ્જિદે વલી છે આજે જે બની અને આજે જે લોકો નમાઝ પઢી રહ્યા છે એની અંદર તમારો પૂરો સાથ અને સહકાર છે. મૌલાના, ખુદા હાફિઝ. અને બીજું એક જરૂરી એલાન મારા તરફથી છે કે અમુક વર્ષો પહેલાં 3-4 વર્ષ જે આપણે વચ્ચે થોડાક પ્રોબ્લેમ વાળા ગયા, એ બધા એના જે અઝાદારીમાં પ્રોબ્લેમ થયો એનો અમે માફી ચાહીએ છીએ. અને આ જુલુસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 1975થી ખોજા શિયા ઇસ્લામી મદ્રસા પાર્ટી જમાત દ્વારા જ શરૂ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે બધા દુઆ કરો કે અઝાદારી જે આજની થઈ છે એવી તા કયામત સુધી અમારી મોહબ્બત બાકી રહી. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. मेरे अजीज़ों, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सदका है कि उन्होंने मुझे आज जहाँ पहुँचाया है, ये उनका करम है, उनके बाबा का करम है, उनके दादा का करम है. महुआ मेरे लिए वो ज़मीन है जहाँ एक
बीज जब ज़मीन पे डाली जाती तो वो ज़मीन उस बीज को एक दरख्त बनाता है। मैं गुजरात की अहमियत को मेरी ज़िंदगी में और महुआ की अहमियत को अपने अंदर लेके चलता हूँ। आप सब ये जो 20-22 साल के जवान हैं इनको तो जहन में नहीं होगा, मगर जो ये 60-65 के हैं वो उनको अच्छे से मालूम होगा। मुझे नहीं पता कि मैं जब पढ़ता था तो किसने मेरे नाश्ते का पैसा दिया और किसने मेरे खाने का पैसा दिया और किसने मेरी कब मदद की, कहाँ कहाँ मदद की, मैं नहीं जानता हूँ। बस इतना पता है कि महुआ ने मेरी परवरिश की है। महुआ ने मेरे बाप को बहुत कुछ दिया, मेरे घर को, मुझे, मेरी ज़िंदगी को। और महुआ मेरी ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदा रहता है। और ये 28 के इस प्रोग्राम में सज्जाद भाई कई साल से कह रहे थे, लेकिन मैं इस साल इसलिए आया कि चलते हैं आपके दरमियान। चूँकि आपको पता है हिंदुस्तान में मैं 80% वादे मना कर देता हूँ, उसमें 20% जो करता हूँ उसमें बिल्कुल टाइम नहीं रहता। मैं एक दिन में 2-2 स्टेट में मजलिस पढ़ता हूँ। एक दिन में कभी मुझे 600 किलोमीटर के दरमियान मजलिस पढ़नी होती। सुबह कहीं और होता हूँ, रात को देर कहीं और होता हूँ। मगर महुआ मेरी ज़िंदगी में है। अब चूँकि यहाँ एक जमे गफ़ीर है, बहुत बड़ा मजमा है, मैं देख रहा हूँ। मैं इन कैमरे वालों से कहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा के वो जो आखिरी मस्जिद तक लोग दिख रहे हैं उनको भी आप दिखाएं, क्योंकि ये सारा का सारा मसला तादाद का है। हिंदुस्तान में जिसकी जितनी भीड़ है उसकी उतनी बात मानी जाती है। तो जो तुम्हारे भीड़ की जगह है ना, भीड़ को दिखाओ। ये देखो वहाँ तक सर दिख रहा है, ये जो यहाँ स्टेज पे खड़े हैं ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो वहाँ दिख रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हमेशा अकल से काम लो। ये 4-5 लोग जो स्टेज पे हैं वो हैं स्टेज पे इसलिए आपकी वजह से। अभी यहाँ आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो अपने मजमे की ताकत को समझो। और बस एक जुमला जो कि तकरीरों में कहना ज़रूरी होता है, मुझे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव में भी जा रहा है। हुसैन वो पासपोर्ट है, हुसैन वो पासपोर्ट हो जाए। हुसैन वो पासपोर्ट है जिसको मिल जाए उसे दुनिया की किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अभी हुसैनियत का नारा लगाना, मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, फिर जवानों से कहूंगा तुम सब साथ मिलकर नारा लगाएं। देखो, हुसैन वो पासपोर्ट है जिसे मिल जाए उसे दुनिया के किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखो, महुआ में ताज़िया उठती है, कहाँ लेके जाते हो? करबला। अहमदाबाद में ताज़िया उठती है, कहाँ लेके जाते हैं? करबला। पंजाब में ताज़िया उठती है, कहाँ लेके जाते हैं? करबला। दिल्ली में ताज़िया उठती है, कहाँ लेके जाते हैं? करबला। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में ताज़िया उठती है, कहाँ लेके जाते हैं? करबला। और सब सिर्फ शिया ताज़िया नहीं उठाते। 4,80,000 गाँव में हिंदू ताज़िया उठाता है, दलित ताज़िया उठाता है, ब्राह्मण उठाता है, राजपूत उठाता है, जैन उठाता है, सरदार उठाता है, सुन्नी उठाता है, शिया उठाता है। उठाने वाले भी उठाते हैं, नहीं उठाने वाले भी उठाते हैं। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारे ताज़िया उठाते हैं। इनसे पूछो कहाँ लेके जा रहे हो? सब क्या बोलते हैं? करबला लेके जा रहे हैं, करबला लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हो? क्या दफन करने के लिए जा रहे हैं? इनसे पूछो, दफन करने के लिए तो कब्रिस्तान जाते हैं, तुम करबला क्यों जा रहे हो? तो सबका जवाब होगा, जो जी के मर जाए कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए करबला जाता। बस पर अजीज़ान, बहुत शुक्रिया। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ये ख़त्म करके आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, हुसैनियत का तारुफ दुनिया में कराओ कि हम जान देने वाले लोग हैं, हम जान लेने वाले लोग नहीं हैं।
हम कटने वाले लोग हैं, हम काटने वाले लोग नहीं। हम मरने वाले लोग हैं, हम मारने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी जुमला कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हुसैन ने करबला में एक लकीर खींची थी 1400 साल पहले। जब तुमसे कोई पूछे कि तुम किस टाइप के मुसलमान हो, तो 1400 साल पहले हुसैन ने करबला में एक लकीर खींची थी। लकीर के इस पार भी मुसलमान था, लकीर के उस पार भी मुसलमान। ठीक है ना? तो अब जब तुमको कोई बोले मैं मोहम्मद यूनुस, में मोहम्मद याकूब, में मोहम्मद इस्माइल, में मोहम्मद जकरिया, मैं जापान का मुसलमान, में ईरान का मुसलमान, में तुर्की का मुसलमान, में फला जगह का मुसलमान, तो कहना भाई इतना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बता दो कि हुसैन ने करबला में एक लकीर खींची थी, तो इस पार वाला मुसलमान है या उस पार? बस मेरे अजीज, मेरे अजीजान, इन्हीं जुमलों के साथ मैं शुक्रिया मौलाना साहब। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मैंने हमको ये मिडली दी, तकरीर की, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत की शान के अंदर आपने बहुत ही उंडाई तकरीर की, बोली एक शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो अपने अज़ादार भाई आते हैं हर एक गाँव से, उसमें बहुत टाइम पहले 1434 में जब हिजरी सन और बम्बई से महुआ आ रहे थे इस आज़ादारी के प्रोग्राम में, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ने का मैं आपको एक नंबर गुजारिश करता हूँ हर एक मोमिन भाई को, क्योंकि इस मरहूम की रूह के सवाब के लिए मरहूम मोहम्मद अली अब्बास अली विरानी जो बम्बई के थे, मुमरा के रहने वाले, दूसरे सरवर अली भाई सादिक अली भाई मुनी, वो भी मुंबई के थे। अल्लाह उसको जन्नत के लिए रज़ा अता फरमावे, ऐसी दुआ करते हैं। और उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ने की नम्र गुजारिश करता हूँ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम अज़ादारों गुजारिश है कि सब बनाओ। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का, आता है खाली अलम अब्बास का। हो गया मरना सितम मेरे भाइयों सम्मान है भाई, सम्मान हुई जाए। करते हैं मातम हरम अब्बास का। सब बनाओ भाई, सब बनाओ, सब बनाओ भाई। मौलाना साहब सब बनाइए, हमारे दरेक मोहब्बत बिरादर को गुजारिश है कि सब बनाइए। सब बनाओ भाई, सब बनाओ, सब बनाओ। करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का। सब बनाओ भाई, सब बनाओ, मेहरबानी सब बनाओ। करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का। देखिए, ये मातम हो या नोहा हो या मजलिस हो या मसायब हो, सब खिदमत शर्फ की बात होती है। मैं आवाज़ नहीं है इस वक्त ऐसी, और मैं पढ़ता भी नहीं, मैं बचपन में पढ़ा करता था। मगर ये मेरा गांव है, मैं हम वतन से बैठे हुए हैं। मुझे रज़ा ने कहा कि अल्लाह शाम के बाज़ारों में अज़ाने सुन के याद आया। सब बनाओ भाई, सब बनाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाम के बाज़ारों में अज़ाने शाम के बाज़ारों में अज़ाने सुन कर याद आया अकबर।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शाम के बाजारों में अजाने अशहदु अल्लाह की सुन सदा, ज़ैनब ने यूं रोकर कहा, मेरे खुदा मजबूर हूँ मैं, फिर भी करूँ तुझको सजदा, फिर भी करूँ तुझको सजदा। हाथ मेरे गर्दन से बंधे हैदरी, मेरे गर्दन से बंधे हैं, सर पे नहीं मेरे चादर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शाम के बाज़ारों में अज़ाने सुन के याद आया अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैया अल फलाह सुना, रो रो कर इज़्ज़ा ने कहा, जिनके घर की हो ये अज़ा, उनका खून मक़तल में बहा, उनका खून मक़तल में बहा। अपनी फतह पर जश्न मनाए हैदरी, अपनी फतह पर जश्न मनाए, खून नबी के सौदागर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शाम के बाज़ारों में ज़ाने सुन के जवानों से कहना चाहूँगा, देखो जब कोई भी नोहा पढ़ रहा हो और आपके दरमियान हो तो आप उसके नोहे से ज़्यादा अपने मातम को अहमियत दो, चूँकि उसके नोहा को अगर सैयदा सुन रही होती हैं तो सज्जाद आपके मातम को भी देख रहे होते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हमारे बात खान से तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा। ये क्या हो गया बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा। करती है ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा। बोलते नहीं क्यों भला हो गए मुझसे जफा, बोलते नहीं क्यों भला हो गए मुझसे खफा, बोलते नहीं क्यों भला हो गए मुझसे खफा, बोलते नहीं क्यों भला हो गए मुझसे खफा। रोके चले खुदा बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा। रोते हैं जिनका मलक तेरा मदीना हुआ, रोते हैं जिनका मलक तेरा मदीना हुआ, रोते हैं जिनका मलक तेरा मदीना हुआ, रोते हैं जिनका मलक तेरा मदीना हुआ। चल बसे सोए जिना बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है, ज़हरा पुका
दुख में हमारे भला लेना खबर कौन आप दुख में हमारी भला लेगा खबर कौन आप दुख में हमारी भला लेगा खबर कौन आप दुख में हमारी भला हाँ ये यतीम हो गए बाबा रसूल खुदा करती है जहरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है जहरा पुका बाबा रसूल खुदा रोती है ज़ैनब खड़ी सर भी है उनका खुला रोती है ज़ैनब खड़ी सर भी है उनका खुला रोती है ज़ैनब खड़ी सर भी है उनका खुला रोती है ज़ैनब खड़ी सर भी है उनका खुला मुझसे तो बोलो जरा बाबा रसूल खुदा करती है जहरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है जहरा पुका बाबा रसूल खुदा करती है फातिमा सुगरा कर लुट गया बेटा फातिमा सुगरा घर 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 लुट गया बेटा ढूंढ हाल परेशान दुलारे बाबा की तेरी आई नहीं फिर के सवारी भैया बोली पर भी तेरा वाया दबावी 100 बार खूबी हो तेरी मजलों के वाली मैं देती हूँ पुरसा मैं फातिमा सुगरा मैं देती हूँ पुरसा मैं फातिमा सुगरा मैं तुझे आती हूँ सब हाल सफर का पर जैसे में किस तरह सा कोई चले गया शर्मंदे गया किस तरह बाजार में गुदमा दरबार सितम जट का वो रुके का किस्सा सुन ले मेरी दुखिया मैं फातिमा सुगरा सुन ले मेरी दुखिया मैं फातिमा सुगरा जिस वक्त हुआ बच्ची के टुकड़े गिरे अकबर आंखों में बशारत न रही शाह के दिल पर लाशों को उठाने गए इस हाल में सरवर दिल देते हर एक लाश पे एक बड़ की समझ कर दिलता न तलाशा ऐ फातिमा सुगरा दिलता न तलाशा ऐ फातिमा सुगरा शब्बीर ने जब लाशा पर गंद पाया मर्जी जो सीना साथ कलेजा निकल आया मैयत को जवाब देके दिल चुमके उठाया लाखों से मैदान से कैमों में लिटाया एक हश्र था बरपा मैं फातिमा सुगरा एक हश्र था बरपा मैं फातिमा सुगरा तो ढूंढे जिसको हर एक गोद में दिल की 6 माह के उस लड़की नहीं थी कोई तकदीर मारा भी ने तेरे भाई को यकीन वो मुंह से उगल कर हुआ बेजान वो बेशीर खाली हुआ झूला मैं फातिमा सुगरा खाली हुआ झूला मैं फातिमा सुगरा मगर एक रात सुहागन गई बेवा हुई कुबरा पामाल किया जालिमों ने दुल्हा का लाशा मक्कल में तने जाने हसन बिखरा पड़ा था इन आंखों ने देखा मैं फातिमा सुगरा इन आंखों ने देखा मैं फातिमा सुगरा वो गजल के बच्चों को जो बातें नहीं है आती थी सदा ये अलग और कभी गए जब हक से सिवा चेहरा
अतफाल को बेचे पानी गया बनने पिसरे सैयद कौने मारा गया सत्ता ए फातिमा सुगरा मारा गया सत्ता ए फातिमा सुगरा कंसे गया देखते वो दोनों दुलारे लेकिन न गए लड़ते वो दरिया के किनारे कुछ दम नहीं जो न मोहम्मद गए मारे तेरे ही पे वो पाई के सदके में उतारे क्या जिक्र हो उनका ए फातिमा सुगरा क्या जिक्र हो उनका ए फातिमा सुगरा जिसने आया करबला में हुआ महशर शब्बीर के गर्दन में चला जुल्म का खंजर कलमा भी जलाए गए और छिन गई चादर ना मेरों का मुस्बता और हमसे खुले सर हर लम्हा ईजा ए फातिमा सुगरा हर लम्हा ईजा ए फातिमा सुगरा बच्चों को गले बाजू हमारे गए बांधे कुछ मुमिन ये इनमें आदा वहाँ आए उन ताकों में बुलाए न थे जिनके बतावे दिगारा मोहरम को चले कर वो बना के दिन रात सफर था ए फातिमा सुगरा दिन रात सफर था ए फातिमा सुगरा इस कर सुना हूँ सफर का तुझे अहवाल चेहरों को छुपाए हुए थे बीवियों के पास जिन कब्र कसर दूसरे सफर का था बुरा हाल कुछ जिस्मों से हिस्सों से जुदा हो गई थी काल वो देखेगी बेटा ए फातिमा सुगरा वो देखेगी बेटा ए फातिमा सुगरा सब बीवियों के हाथ बसे पुष्प बंधे थे माओ के बजाए के फिसर माओ के पकड़े रफ्तार की तेजी से संभल पाए न बच्चे 64 मेरे मासूम गए नाकों से गुजरे ये ताजा अलम था ए फातिमा सुगरा ये ताजा अलम था ए फातिमा सुगरा दरबार यजीदी में गए फिर हमें लेकर बिदलाए देवा कुर्सी नसी साथ सोला कर झगड़े हुए रस्सी से सब और खुले सर बढ़ जाता है दिल करती हूँ जब याद वो मंजर क्या वक्त कठिन था ए फातिमा सुगरा क्या वक्त कठिन था ए फातिमा सुगरा दरबार से ले जाके रखा गए सितम में पाया न सुकून पीसा हुआ गम में घुट घुट के सकीना मरी जिंदा ने सितम में एक बार कयामत हुई फिर पहले हरम में लाशा भी न उठा ए फातिमा सुगरा लाशा भी न उठा ए फातिमा सुगरा जिंदान ही में नन्ही सी एक कब्र बनाई दबना भी बसद जब्र वहाँ बानों की साई हम सबको दिया जालिमों ने हुक्म रिहाई मरकर भी रिहाई न मयस्सर से आई वो रह गई तन्हा ए फातिमा सुगरा वो रह गई तन्हा ए फातिमा सुगरा माँ देती रही पीटी के सरू अपना दुहाई की शाक बहुत बीवियों के दिल पे जुदाई लेकिन हुई मरकज से सकीना की जुदाई फिर शाम के जिंदान से कर वो बला आई फटा था कलेजा ए फातिमा सुगरा फटा था कलेजा ए फातिमा सुगरा जब बीवियों को गंज शहीदा नजर आया ना किसी गरीब बीवी ने अपने को गिराया नजरों में था शूरी का मंजर जो समाया बस देखते ही मुंह से कलेजा निकल आया हर लब पे था नौहा ए फातिमा सुगरा हर लब पे था नौहा ए फातिमा सुगरा सज्जाद ने दबना दिए जब लाशें 72 अंसारों अजीजों का किया चैलू में सरवर अब्बास का कासिम का किया चैलू में असगर उस हाल में गुरबत ने किया चैलू में सरवर कुछ पास नहीं था ए फातिमा सुगरा कुछ पास नहीं था
ऐ फातिमा सुगरा सुगरा ने सुनी ज़ैनब मोहतर से रोज़ार, चारा रहा सब्र का कश हो गई नाशाद। उस वक्त हुसैन हरम ने जो की फरियाद, और शब ने गवा बैठे थे वह जितने थे आबाद। सब करते थे नाला ऐ फातिमा सुगरा, सब करते थे नाला ऐ फातिमा सुगरा। बशीर ने जो दी आवाज गम मदीने में उधर किया है पहले पुकारी ज़ैनबे बुज़दर दुहाई है नाना के भाई गुलों के हजरत कुलसूम ने ये रोकर हमारे जल के मदीने हमें कबूल न कर। हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। आए जंगल में हम रसूल का घर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। पिता की जल से वो बालों का फूल बस न सका, सितम गलों से सभी रसूल बस न सका। पिता की जल से वो बालों का फूल बस न सका, सितम गलों से सभी रसूल बस न सका। हमारे तेरी सारी लोन के होकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। तुम कल्ब बला में उजर की आए मिलोनी भाल से अपने की आए। तुम कल्ब बला में उजर की आए मिलोनी भाल से अपने की आए। पर के आया नरम से किसी दूर नजर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। तू ही लोग हमको रुलाते सुना के हमारा ये बिस्तर में लाते सुना। तू ही लोग हमको रुलाते सुना के हमारा ये बिस्तर में लाते सुना। तेरे सितम सो गया बतिया सिगल हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। अजीब भर तफे तमाम करते थे तरह तरह के घरों से बनते थे। अजीब भर तफे में तमाम करते थे तरह तरह के घरों से बनते थे। के हंसते हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर। दिदाए छीनी गई सत्य गल नसीब
में निगाहें छीनी गई सांस खाया गया हसीन करके हमें खाया गया किसी ने जीव कहा हम जिलाल पैगंबर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर तमाम तेरे अम्मत दिल सहती रही मगर पोस मदीना दिल कहती रही तमाम तेरे अम्मत दिल सहती रही मगर पोस मदीना दिल कहती रही सकीना तोड़ गई दिल के उठ कर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर हमारे उठाने से फायदा क्या है हमारे आने जमाने से फायदा क्या है हमारे जिसको उठाने से फायदा क्या है हमारे आने जमाने से फायदा क्या है हो चुका नीचे जब से कतल हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर अगर गमों की कहानी सुनाने आए कदेश की सुनानी आए मगर गमों की कहानी सुनाने आए कदेश की सुनानी आए हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर अजीब हल्क पाहे चले खिलते हैं बसंत को अजीब हल्क पाहे चले खिलते हैं बसंत को हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर ये बहन हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल कर रसूल पाक क्या हो नया ज़माने को 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 जो घर से कर दिया बेघर तेरे घराने को रसूल पाक क्या हो नया ज़माने को रसूल पाक क्या हो नया ज़माने को गया के शाने अलम दादे वफा की कसम इतना बेहतरीन ओ खड़ा के शाने अलम दादे वफा की कसम ओ हजारों हाथ दिए है अलम उठाने को रसूल पाक क्या हो नया ज़माने को रसूल पाक क्या हो नया ज़माने को करो न मजलिसो मातम पकड़ दिखाने को करो न मजलिसो आदम पकड़ दिखाने को ओ जुलूस चाहिए बस में अज़ा में आने को
रसूल पाके क्या हो गया जमाने को, रसूल पाके क्या हो गया जमाने को, हमें हुसैन ज़माने से मिट नहीं सकता। ओ हमें हुसैन ज़माने से मिट नहीं सकता, वो खुद ही मिट गया जो भी उठा मिटाने को, आगे क्या हो गया जमाने को, रसूल आगे क्या हो गया मिटाने अलम सारे वफा की कसम। वफा की कसम वो हजारों हाथ दिए आलम उठा देखो, आया हो गया जमाने को, आया हो गया जमाने को, जल्दी जल्दी मुझसे सर उठाने को। मुझे सर उठाने को, समाने को, क्या हो गया जमाने को, रसूल क्या हो गया जमाने को, जमाना हो गया कले वो जमाना हो गया कले हुसैन को लेकिन, वो जमाना आज भी रोता है उस जमाने को, क्या हो गया जमाने को, रसूल क्या हो गया जमाने को, अजीब दर्द था आवाज़े से गाता मैं, वो अजीब दर्द था आवाज़े से गाता मैं, वो तड़प उठे अली असरल किरण में जाने को, रसूल क्या हो गया जमाने को, रसूल क्या हो गया जमाने को, दिन रात दुख उठाने को, रसूल क्या हो गया जमाने को, रसूल क्या हो गया जमाने को, बरोज हसीने फरमान पाकी का है, वो बरोज हसीने फरमान पाकी का है, ओ गले
આપણી વાજીબ જે નમાઝ છે આપણે વાજીબ નમાઝ અદા કરી પછી જે વળી અગરથી આપણે મગરીબના બાદ આપણે ગાડી જ્યાં સુધી ગાડી ભરાય થાય ત્યાં સુધી મસ્જિદે પહોંચી જાય મસ્જિદે ભરી ગાડી થઈ જાય એટલે આપણે આપણી વાજીબ કરી ઈશાના પર કે ભાઈ બોલે આ શોપ આપણે કેટલા નવું હોય કે આપણે મુસાફર ખાનાની અંદર સગવડતા ધોરણ રાખેલી છે એ ભાઈ હોય તો ગરમ પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા છે અને મુસાફર ખાનાની અંદર બિન સગવડ રહ્યા છો જે આપણા અલીભાઈ આદિત્ય જવાબદાર એટલે ગેરવર્તન થઈ જાય તો મોહમ્મદ વાલી आगे दिल की पूजाऊं मैं कैसे उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर तू है करियल जवान है बेटा पाप तेरा गरीब है इतना दूरिया को का हो गया रुखसत मुझको आता नहीं नजर है माँ तेरे पैरों में जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर जिसने 18 साल पाला था कैसे देखे कि वो तेरा नाता तेरी शादी का शादी से अरमा कैसे झेले कि वो तेरा सदमा तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर तू है करियल जवान है बेटा बाप तेरा शरीफ है कितना दुनिया को ना हो गया रुखसत तुझको आता नहीं नजर है माँ तेरे पैरों में जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर तेरी आया है काफी है वो दुखी बहना तुझको भी मारे ने बुलाया है बादा सुगरा बुलाया ना अपने दिल से लगाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर ऐसी बुरी बात है तू नहीं बोलो मैं बुलंदा ये नहीं बोलो क्या तू डरती है बाप के हम नज़ाकिर को यूं नहीं तोड़ो अपनी बुरी बात बताऊं
मेरा शहर वाला अकबर भाई बहन का है अकबर दीवानी नहीं मिलता ओ दुनिया एक दुनिया तू बताऊं मैं कैसे तेरा रास्ता उठाऊं मैं कैसे मेरा वाला अकबर अकबर मेरा वाला अकबर जीने अब कहाँ पर देखूं कैसे मैं लक्ष्मी देखा लुत्फ जीने अब कहाँ पर दिल से उठती है ये खुदा अकबर सुबह चूड़ी सी जो तूने भूल लाए वो अल्लाह अकबर सूरत भुलाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर सबसे बड़ा माहौल है बेटा देखूं कैसे मैं लक्ष्मी की बेटा मैं तो परदेश में अकेला हूँ देश करना क्या करूँ बेटा बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर शादी पाए दुआ है खालिक से ऐसा किसी पे ना आए जैसा आया है मदीना घबराई है ज़ैना 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 आया है मदीना एक साल गुज़रा है जिंदाल सितम में दिन बाकी गुज़रेगी ज़ैनब इस गम में मकतल में असगर जिंदा में